So, just a few days ago, a video was seen doing rounds on social media where a 13-year-old girl from Rajasthan was seen gathered with a bunch of elderly men. They were performing rituals to coronate her as the queen. She had become the first girl in her family's 400-year or 450-year-old lineage to be ceremonially declared as an heir under the traditional Pakka Dastur. Many called it a victory for equality, a tradition finally changing with times. But beyond the viral headline, this ceremony began with a loss. Because before Tejasvi inherited a legacy, she had first lost her father. This is Khairwa, about 100 kilometers from Jodhpur. The ceremony carries no legal weight. India abolished princely privileges decades ago. But in rural Rajasthan, former royal families still hold real social influence. Tejasvi's father held elected office too, twice as Sarpanch, once on the Panchayat Samiti. Often, it's the families running old estates who villagers still vote in today. ये अप्रॉक्स जोधपुर से 100 किलोमीटर पे खैरवागढ़ है, जो कि मारवाड़ में 9 सिरायत थी। उनमें से टॉपेस्ट वन में खैरवा स्टेट है जोधों का। मोटा राजा उदय सिंह जी से यहाँ सेटल हुए थे, तब से ये खैरवागढ़ पर 1 नंबर सिरायत पे है जोधपुर स्टेट के अंदर। और जोधा राजपूत है, गोविंदा सूत जोधा है। Traditionally, in the absence of a female heir in a family ruling in any capacity, a male relative, no matter how distant, would be ceremonially declared the successor. This is the first time that a family in Rajasthan has chosen their daughter instead. Back in the day, the heir was like a clan chief of a thikana. These thikanas would serve as the fighting arm apart from handling revenue, law and order, and justice for the village. While once a woman is married, her children are considered to be members of the father's clan instead. Dr. Reema Huja, historian and president of ICOMOS India, says that it is a good innovation, if you can call it that, has come because they are recognizing the equality between the boys and girls, men and women, but at the same time, the reasons for why they are doing it, the context needs to be understood, if not appreciated. But in this case, the actual inheritance tika going to a girl is a first. खैर ये पहल तो ऐतिहासिक है और ये सब ने मिलकर इसका डिसीजन लिया है। ये इवन जोधपुर रिजाइनर के वहीं से इसकी स्वीकृति मिली थी, उसके बाद ही इसको आगे कार्य में परिणत किया। तो इससे पहले क्या परंपरा चली आ रही थी? उसके पहले तो क्या कि जो यदि आपके पुरुष रहता था तो उसी को पर वो दस्तूर होता था। अब क्या भाई साहब अकेले हैं, इसलिए वो सबने डिसीजन लिया क्यों नहीं भाई साहब को ही इसका उत्तराधिकारी घोषित करें। है तो भाई साहब ही उत्तराधिकारी घोषित। The ceremony happened just weeks after the death of Tejasvi's father. She says she didn't immediately realize what had happened. मैं नारायणगढ़ में थी, तो नारायणगढ़ के अंदर तो है ना मेरे को बोला कि दाता की तबीयत ख़राब हो गई, तो दाता को ना जयपुर लेके जा रहे हैं। तो उधर मेरे को पता दाता को जयपुर लेके जा रहे हैं। फिर बोला फिर जयपुर के अंदर एक दिन रुके थे, फिर बोला कि ना दाता को अहमदाबाद लेके जा रहे हैं। तो हमको बोला कि आप लोग नहीं, पहले बोला मम्मा के पास आ जाओ जयपुर। फिर है ना गाड़ी के अंदर फ़ोन आया कि ना आप लोग खैरवा चले जाओ। तो फिर हम लोग आए, तो यहाँ पर है ना सब जने रो रहे थे और मुझे तो पता ही नहीं था। फिर मेरे को तो यहाँ पर आके पता चला। मुझे तो लगा कि दादा अहमदाबाद गए हैं दादा को लेके। कि ना ये यहाँ पर पता है क्या होता है कि थोड़ा भी कुछ होता है तो लोग रोने लग जाते हैं। तो है ना मेरे को ऐसा लगा कि है ना दादा को अहमदाबाद लेके गए, तो है ना यहाँ पर सब जने रोने लग गए कि दादा की ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई। क्योंकि यहाँ पर है ना ऐसा पता है पहले भी हुआ था, जब मम्मा की है ना शुगर लो हो गई थी ना, तो मम्मा बिल्कुल ऐसे बेहोशी में आ गए थे, तो सब जने रोने लग गए थे। तो मेरे को लगा कि है ना इसलिए रो रहे हैं। फिर मुझको भाभी साहब ने बताया।
For many years, this isn't simply the story of royals or of a family breaking a centuries old tradition, but it is also the story of a 13-year-old daughter stepping into her father's shoes at a very young age while she is still coming in terms with his absence. Her father, Harishchandra Singh Jodha, was around 14 or 15 years old when he himself inherited the title. He died at the age of 78. ये तो नेचुरली, ये देखो कि परिवार पे दुखों का जो पार्ट टूटता है, इसमें उस मुश्किल घड़ी के अंदर परिवार वाले साथ रहते हैं, समाज वाले, छत्तीसी कम्युनिटी, जैसे मेरे जो फूफो साहब थे, वो मेरा गांव ओशिया है, तो उस घड़ी के अंदर उनकी जो लोकप्रियता थी वो आप देख सकते हैं कि उनके जब दाह संस्कार के समय में 2-4 हज़ार 5 हज़ार लोगों की जो भीड़ थी, वीडियोस में भी देखा है, सोशल मीडिया में भी आपने देखा है, तो वो एक इतनी ऊंची शख्सियत थे, उनके लिए हर आदमी रोया है। इवन देन गांव पूरा उस दिन क्लोज रहा था, आसपास के और भी 3-4 गांव हैं, उन्होंने अपने प्रतिष्ठान, मार्केट जो भी है वो क्लोज रखे उनके सम्मान में। A crowd that size for a man with no authority over the village is only partly about the title he held. It's what he built with it, the family says. He meditated disputes, he stayed visible, and he was the person that people turned to at any hour. Land, an old name, decades of presence. In rural India, that still outlasts the kingdom itself. जब आप एक जो है एक उसको एरिया को हेड कर रहे होते हैं किसी तरीके से, तो ऐसा होता होगा कि काफ़ी सारे लोगों की आपके साथ जो है बहुत उम्मीदें भी होती होंगी। तो क्या किस तरीके से आपको कंडक्ट करना पड़ता है अपने आप को गाँव में? क्या मतलब लोग मदद लेने आते हैं? क्या मतलब कल को जो है मतलब जो भी हेड कर रहा होता है उसकी क्या-क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बन जाती हैं बेसिकली? देखिए, ऐसा है कि जो ठाकुर साहब, लेट ठाकुर साहब हरिश्चंद्र सिंह जी जो थे, बहुत ऊंची शख्सियत थे गांव वालों के लिए। गांव वाले उनको एज ए अपना लीडर और भगवान के जैसे मानते थे, वो सबकी हेल्प कराते थे, कभी किसी के साथ उन्होंने ऊंच नीच का भेद नहीं रखा। और उनकी जो प्लानिंग थी गांव के प्रति, लोगों के प्रति, उनकी प्रतिष्ठा, मान सम्मान जो लोगों के मन में था वो मन से था। आजकल लोगों में फॉर्मेलिटी हो गई, पर यहाँ की जो जनता है उनको मन से चाहती थी, और वो लोगों के लिए हर एंगल से वो तैयार रहते थे। कोई आपदा आ गई, कोई एजुकेशन का काम है, बिजली का है, गांव के विकास का है, किसी भी मुद्दे को लेके वो हर समय अपने जीवन के अंतिम क्षण तक वो जनता के बीच रहे। जीवन के अंतिम क्षण तक वो जनता के बीच विराजे और जनता की सेवा की उन्होंने। और लोगों का भी ये रहता है कि भाई उनको जो गाइड कर रहा है, उनको रिप्रेजेंट जो कर रहे हैं, वो इस काबिल थे कि जनता का उनसे सीधा जुड़ाव था। आधी रात को कोई आता था तो बिना हिचकिचाहट उसकी मदद कराते थे। सरकार आजकल जो संसाधन अपने को जो उपलब्ध करा रही है, उस टाइम में ठाकुर साहब ने आज से 50 साल पहले भी लोगों की मदद की है। और आज भी जो जनता का स्नेह था उनका, उनके लिए मतलब ठाकुर साहब ने लास्ट 15 दिन पहले भी, स्वर्गवास से 15 दिन पहले भी जनता के बीच में मीटिंग में विराजे थे। वो उनका जनता का स्नेह था और वो उनका भी अपनत्व था। तो अभी जो तेजस्वी हैं, वो जब बड़ी होंगी तो ये सारे एक्सपेक्टेशंस उनसे भी होंगे कि वो गाँव वालों को एक तरीके से मीटिंग्स में बुलाएँ या फिर लोगों से जो है जुड़ी भी रहें। देखिए, इसमें लेट ठाकुर साहब का जो जुड़ाव, उनकी मान सम्मान प्रतिष्ठा जो रही है, हम सब यही चाहेंगे कि भाई साहब तेजस्वी उनको बनाए रखे और भगवान जोगमाया उनको बनाने में मदद करे। अभी बच्चे हैं पर The family says that nearly 1,000 people attended the succession ceremony. Many residents of the village has extended their support to this change. But still, some villagers, especially the older members, Marwari speaking members of the village, believe that the title should have passed to a male relative, in keeping with tradition. प्रॉब्लम होती तो दस्तूर होता ही नहीं। यदि किसी को इसका प्रॉब्लम होती या कुछ होता तो इसकी ये दस्तूर होता ही नहीं। भाई सबकी उससे सबकी सलाह और मंशा से पूरा काम हुआ है। करीब 1000 आदमी होंगे और ज़्यादा पर कम नहीं उस दिन दस्तूर के रोज। तो इसलिए उसका तो कोई मतलब सबकी सहमति से हुआ है ये।
The family frames the decision as adapting an old custom to changing times. It is also a reminder that traditions evolve selectively, often through negotiations within influential families and communities, rather than by replacing older hierarchies altogether. पहले तो मुमकिन थी नहीं। भाई अभी नारी शक्ति का जो बढ़ा हुआ चल रहा है, उसके हिसाब से इनका जो दस्तूर हुआ है, ये एक ऐतिहासिक दस्तूर हुआ है और ये लोगों ने सही माना भी है, किसी ने नहीं माना। Tejasvi's bhabhi, Yashshri, who is married to her bua's son, says that bringing even the smallest change in an old custom is difficult. But the family is glad that the decision has been supported by neighboring ठिकानास too. तो पूरा अभी चेंज हुआ है, एक प्रथा जो काफ़ी टाइम से चल रही थी उसको रिसेंटली एक नया स्टेप लेके टुवर्ड्स वुमेन करा गया है, तो इसके बारे में लाइक व्हाट डू यू थिंक, वाज इट difficult to do so in a setting like in Rajasthan especially, like, or are things been changing over the past few years? Yes, things are definitely changing over the past few years, but it is not. It's never easy to bring any change. It takes a lot of courage. A lot of things has to be taken care of. कि आप जो कर रहे हो उसमें कहाँ कैसा आप कर रहे हो, बट जो बहुत अच्छी पॉजिटिव चीज़ रही वो ये रहा कि स्पेशली गांव वालों ने और जो यहाँ के जो ठिकाने हैं, हम भाईबंद ठिकाने भाईपा बोलते हैं हम लोग, उन्होंने इस चीज़ को स्वीकृति दी। बिकॉज जिस दिन फंक्शन हुआ है उस दिन एवरीबडी वॉज देयर, बाप जी हिजाइनस जोधपुर उनके भी रिप्रेजेंटेटिव यहाँ पर थे। तो दैट इज़ समथिंग एक्चुअली दैट शोज़ दैट देर इज़ people have changed their way of thinking। अभी लड़कियों को For now, though, the title changes little about Tejasvi's everyday life. She is still a class 7 student who travels to school every day. What this ceremony ultimately comes to mean for her, for the family, and for the village is something that will only become clearer with time. In Rajasthan's Pali, this is Saman Hussain reporting for The Print.